reform package, the regulatory reform package for unlisted companies, and the regulatory reform package for listed companies. The proposed amendments are focused on four major areas. Number one, promoting ease of doing business. Number two, encouraging digitization and decriminalization of penalties. And lastly, strengthening principles of corporate governance. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has recently been recognized as reform champion by the Honorable Prime Minister of Pakistan. And this was done during the launch of National Regulatory Reform Initiative. This recognition reflects SCCP's sustained commitment to improving ease of doing business, advancing digital transformation, and fostering a modern, facilitative, and compliance-oriented corporate regulatory framework. As Pakistan corporate sector continues to evolve and integrate with global markets, our legislative framework must remain dynamic and forward-looking. The Companies Act 2017 laid a strong foundation, and these proposed amendments are intended to build up upon that foundation and ensure that it continues to support sustainable economic growth and enhance Pakistan's global competitiveness. Today's consultation at the esteemed forum of PIPFA is an important part of that reform journey. Your insights and practical experience will help ensure that the final framework is balanced, implementable, and aligned with stakeholders' needs. We look forward to your valuable feedback and a constructive discussion. Thank you. Thank you so much, sir, for a wonderful insight. आपने तो दरिया को कूदे में बंद कर दिया, बहुत मुख्तसर में आपने सारी अमेंडमेंट की बता दी, लेकिन हम इंशाल्लाह अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि जो डिटेल्स हैं स्टेप बाय स्टेप उसकी डिस्कशन भी आ जाए, तो उसमें हमारे मेंबर्स भी की लर्निंग भी हो जाएगी, एंड देन वील हैव अ स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. सो ओवर टू आई थिंक शहजाद साहब करेंगे प्रेजेंटेशन को. जी थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया जी. जो ये स्क्रीन स्टार्ट होती है तो So a very warm welcome to all the participants and thank you PIPFA for providing this opportunity to SCCP to explain the amendments in the Companies Act. The table of content comprises of relating to this presentation as the background, the interplay of BOI proposals, the theme of proposed amendments, and major proposed amendments. Next slide, please. So the Prime Minister constituted a cabinet committee on regulatory reforms in September 2024. The CCOR constituted on a subcommittee under the chairmanship of Special Advisor to Prime Minister on Industries and Production. And the committee was comprised of BOI, SCCP, Ministry of Finance, State Bank of Pakistan, FBR, OICCI, and they also co-opt many other members. The subcommittee was tasked to review, analyze, and recommend reforms in the Companies Act 2017 for unlisted companies and present them to CCR for their consideration. But the scope of the work was enhanced. They immediately provided us an ultra fast track package of 0. They proposed only 5 provisions therein, and these were targeting towards ease of doing business. But since SCCP was also working on amendments in Companies Act, we also deliberated on those 5 along with many others which were under consideration of SCCP along with the various stakeholders. So a draft bill was first published on 24th July 2025 with 49 proposed amendments. Then the BOI Regulatory Reform Committee submitted a second package called Package 01, which was primarily targeted towards the ease of doing business of unlisted companies and to modernize the law with the global best practices. The package focused only on private companies. The benchmark countries which were considered in this package was UK, Canada, and a state of USA called Delaware. Then the regulatory reform package for listed companies was also presented, and
it was targeted toward reducing compliance for the listed companies. Herein, the benchmark was the jurisdiction of UK, USA, Hong Kong, Singapore, and India. So all in all, these were the three packages which were considered, and then in-house deliberation of SCCP, which created this document of amendment in the Companies Act and proposed draft bill for the amendments. The result of these efforts actually translated into proposed amendment of 183 provision out of 515 provisions of the Companies Act. So this is a major change, major amendments. जगा साहब सॉरी So- टू इंटरप्ट, अगर ये आपका ना प्रेजेंटर व्यू आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे तो जरा वो रीडेबल ज्यादा अच्छा हो जाएगा, काइंडली देखिएगा अगर हो तो। अच्छा, कर दीजिए। हाँ जी, ऐसे ही आ रहा है, लेकिन अभी भी ये हो सकता है। मैं पिक्चर एक्टिव अभी बेहतर है जी। ये उससे बेहतर है, चलें इस पे चला लें अगर वो फुल पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रेजेंटर व्यू था ना, उसमें 2 स्लाइड शो होती थी तो फिर वो रीडेबल नहीं हो रहा था। ठीक है जी, ठीक है जी, चले मैडम, आप फिर इसी को नेक्स्ट इस तरह चला दीजिए। तो ये कर्सर बार हाइड कर दें, चलिए हो गया, थैंक यू, ओके। actually. So the total provision were 183. The out of 183, 114 were targeted toward ease of doing business. 34 were targeted toward regulatory oversight and corporate governance. 17 were targeted toward digitalization, and 18 penalty provisions was actually attracting criminal penalty, and these criminal penalties have been converted into monetary or administrative penalties instead of criminalizing them, considering the proportionality of the offense with the default. So these were major areas in which the amendments were targeted. Next slide, please. The area which were covered here and was the at present there are many provisions where the commission approval or the registrar approval is required. So we first eliminated those approvals which causes hindrance for the businesses. So in case of issuance of share by way of other than right, section 83 has been amended. Section 82 pertaining to issue of share at discount, the approval is eliminated. Approval for appointment of sole agent is eliminated. Conversion of company status for private companies to other form of companies is eliminated. No requirement of the registrar to approve it. Of course, the company has to file the forms for the conversion, but no approval will be required, only acknowledgement will be given. And then change of name, the was required. The name reservation will remain as it is under section 10, but the change of name, wherein the approval of the concerned registrar is required, that has been eliminated. Similarly, court approval is eliminated for reduction of share capital for the private companies only. This is section 89. Another major reform is proposed in this amendment is that there will be no requirement of holding annual general meeting or extraordinary general meeting where the board of director represent 75% voting rights. So the area where any special resolution is required in the general meeting, or if any ordinary resolution is required to be passed by such a board which constitutes 75% of the voting rights,
such company will not be required to hold any general meetings and EOGMs. They can extend their approvals in their board meetings. Now, if you see that it is a major change that the people have to make certain documents. It's often seen that in private companies there are two shareholders. We have over 65,000 single member companies, and the rest of the companies majority is two member private limited company or three member private limited company. This constitute almost 80% of the registry. So this remains this will be a huge benefit to companies that they can now exercise their powers in the board instead of passing special resolutions or ordinary resolution in the general meetings or EOGMs. In terms of digitization, Section 134 now proposes that a company can hold both physical or they can hold virtual, or they can hold a hybrid model as well. The few members can join virtually and few members can join physically. But the enabling provision was not there in the Act. Now this provision has been made. In a similar term, e-meetings and e-voting has been made mandatory, and there will be a subsidiary legislation with this regard in terms of issuance of a notice. The notice will not only set the date of from when the e-meeting and e-voting will be effective, will be mandatory, but also will tell the modus operandi of how these e-voting and e-meetings will be conducted by the companies. Similarly, statutory meeting and commencement of business provision is eliminated. As you know, that currently Section 17 already caters that if you within 1 month you have to deposit the amount of subscription to the company. The subscriber have to pay the subscription amount, and these two provisions were primarily targeted toward these areas that the subscribers have deposited their money or not. So it after Section 17, the Section 19 became redundant in most of the cases. So these provisions are being eliminated, proposed to be eliminated. Another major change, a very big change, is that there will be only one constitutive document. The articles of association will be the constitutive document of the company, and that will be the only document. There are many jurisdictions which contains two constitutive documents. Then there are few which contain one, and then there are a few like New Zealand, which is number one in terms of ease of doing business. They have no constitutive document actually for the companies. But at present, we are reducing the memorandum of association to one document, that is article of association, and the covenants of memorandum will be made part of the article of association, wherein the name, place, object, and liability clause and authorized capital clause will be contained in the articles of association instead of a separate document prepared for the same purpose. Next slide, please. The requirement. So on one side, SCCP is trying to make the entry easy for the companies, while on the other side, we also have a cautious mind, wherein we want the exit of the companies to be as easy as the entry is there. So for companies which have no asset or liabilities in terms of Section 425 and 426, they can be struck off from the register of the companies. And the biggest impediment we are facing right now is the publication of official gazette. The official gazette is often very, it takes a lot of time to publish the gazette, and then people start lingering on. The companies kept lingering on, and we are unable to strike them off. So this official gazette is being replaced by a newspaper advertisement. So the purpose of the official gazette is to make the public aware. The same purpose will be achieved by introduction of
newspaper advertisement. In a similar fashion, the first director will continue till there is any change in member of the company. As we all know that the company is required to hold the first AGM, and then the directors will be appointed therein. But the change from a perspective of the articles, those people who are mentioned in the articles and Form 1 will continue, and they will not and will be called as the first directors, and they will not be required to hold a subsequent meeting unless the articles provide therein, or if the company, there is a change in shareholding of the company in terms of section 162, which is already there, which has no effect as far as this is concerned. So it is considered, for small size companies, it is considered a futile, and practically for all kind of private limited company where the shareholders are same and the directors are also same. So it becomes a futile exercise for them to carry out a fresh election for those people who are already there as directors. So this proposal has also been made in the section 157, that they will continue to hold position unless there's a change in members. Similarly, the election of director is exempted in case of a single member company, and in other case, if all the members are director in private company. So if it is the case, then the members are the directors in a private company. That the same person who are members, who 100% owning the shares of the company, are also present on the board. Then it makes no sense that they again go to a general meeting and get themselves freshly elected. So it does not, make sense for those people who are already working as directors. Similarly, electronic proxy is being introduced. The proxy can be given in through emails or from any portal designed by the companies, or in any other electronic mode or manner which will be prescribed by the commission. There is the inclusion of special audit provision. Section 223A has been introduced. This was actually a part of Companies Ordinance 1984. Then it was removed in 2017, and now it is being reintroduced with small changes. At that point in time, the special audit was done on the request of the shareholder holding more than 20% shareholding. Here, the proposal is of 10%. And similarly, Commission on its own motion can initiate the special audit. We have an inspection regime and investigation regime in terms of Section 221, Section 256, Section 254 in terms of calling of information from the registrar. Then 257 is the suo motu power, or the direction of the court. We can conduct investigations. And then 258, an investigation for the frauds. But if you see, the problem is that the people get offended by the word inspectors, investigation, inspection. So a more conducive word is special audit, that if there are problems or if there are situation in a company which requires special attention, then a specific area need to be audited. Then the regulator can intervene, or one of the aggrieved shareholder can intervene and get the things revouched from an external body, from an external auditor, so that they can have better understanding of the transactions. The 238A has also been introduced in terms of revision of financial statements. The companies can now revise their financial statement. The limit is up to the prior period of 3 years. Only up to 3 years you can alter that, and it is again for the listed company, it is only limited with the approval of the commission. And the premise on which the financial statement can be revised is if the company find out that there is something which is in contradiction
to the Companies Act. The Act says something and the financial statement portrays another, then they have the right to revise their financial statements. The exemption in filing of annual return is eliminated. Exemption in filing of audited financial statement shall be notified by the Commission. And audit exemption threshold should also be notified by the Commission. Earlier, private companies having paid up capital of 1 million or less were exempted from audit. So this 1 million amount has now been changed to the a prescribed threshold, which will be notified by the Commission at certain point in time. It and also Commission, we have received many comments in this regard that these notifications should be based on certain criteria. The criteria which may include asset of the company, the turnover of the company, the number of employees, or even the paid up capital of the company. So on these, majorly the audit exemptions and the exemption of filing of audited or financial statement shall be notified by the Commission. Next slide, please. Now, again, this provision has been reintroduced, which was actually introduced in 2017, the filing of unaudited financial statement. The company having such paid up capital or such other parameters, which I have just discussed, maybe the assets, the number of employees, or the turnover, as may be notified by the Commission, shall file the duly authenticated financial statement. This authenticated will be done by the management of the company, like CEO or the directors, or information on a prescribed format, which will be determined by the Commission. The prescription will be done in coordination with accounting bodies like ICAP, ICMA, and PIPFA, and where these prescribed formats will be applicable on the types of company like small, medium, micro, large, whatever the type of companies, as we have to amend third schedule accordingly when these changes will be brought into the company. So these are the major provisions which have been introduced in the changes. I am not going line by line changes in the provision, but I've just discussed the major changes which relates to accounting, auditing, and other few changes like entry and exit. So all these have been discussed. Now I would like to go back to Imran Munisa and see if we have questions on hand and we can respond to those. थैंक यू सो मच शहजाद साहब, वंडरफुली एक्सप्लेन सर. बड़ा ब्रीफ और ब्रिस्क आपने इंट्रोडक्शन दिया तमाम अमेंडमेंट्स का, एंड इसको भी डिस्कस करते हैं. पार्टिसिपेंट से मेरी गुजारिश है कि वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दें और जो भी उनकी क्वेरीज हैं हम वो एड्रेस करते हैं. बिफोर सर स्टार्टिंग, एक दो चीज़ें पार्टिसिपेंट्स की जो है अवेयरनेस के लिए भी और उनको लाजमी जानना चाहिए, बड़ी ज़रूरी चीज़. हमारे साथ आज मुजफ्फर साहब नहीं ज्वाइन कर सके, कमिश्नर थे. सॉरी, मुजफ्फर साहब, मुबशर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है. मुबशर सईद साहब का एक पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से. सर डिविजनल हेड एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन डिवीजन में, एंड जो आपको आसानियां नजर आती हैं ओवर द पीरियड, जो कि एससीसीपी की फाइलिंग के हवाले से या और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, आज की इस प्रेजेंटेशन में भी जैसे आपने देखा बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हुई हैं. तो इसमें मुबशर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससीसीपी, एंड द मेन थिंग विच ही हैज डन ओवर द ईयर्स, 2 decades से ज़्यादा हो चुके हैं. ही हैज बीन लीडर इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट रेगुलेशन एंड रिफॉर्म्स, और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, एसएमईज के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे. सेकेंडली, शहजाद अफजल खान साहब से अभी आपने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी. शहजाद साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे. तमगा इम्तियाज इनको दिया गया है जी, सिविल अवार्ड पाकिस्तान का हाईएस्ट, एंड ही हैज डन अ मैग्निफिसेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलिमिनेशन फ्रॉम फैटफ, जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था. To eliminate Pakistan's name from that list, he has worked very hard. आमला पे इन्होंने बहुत काम किया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और बड़ी हैवी कंट्रीब्यूशन रही है शहजाद साहब की. सो अगेन थैंक यू शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला.
मीनवाइल ऑडियंस के क्वेश्चन आते हैं। एक दो चीजें सर, मैं इसमें टेकिंग द लिबर्टी, मैं क्वेश्चन इसमें रेज करना चाहूंगा। अगर बशर साहब इसका रिप्लाई कर दें तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट। हमने इसको फोकस किया है, मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था कि हमारी मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं वो रिगार्डिंग हैं रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस। रिडक्शन ऑफ कंप्लायंसेस इज पार्ट ऑफ, एज आई फील, के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि एससीसीपी के हवाले से कॉमन अंडरस्टैंडिंग कॉमन मैन की भी ये होती थी कि कंपनी ना बनाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें हमने देखा है, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रह जाएगा, मेमोरेंडम निकल जाएगा, स्टैट्यूटरी कुछ फाइलिंग को एलिमिनेट किया जा रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट्स कम की जा रही हैं। तो सर अगर एक ब्रिस्क सा ओवरव्यू इस पे आप दे सकें मुबशर साहब, कि ये जो हम लोगों को इसमें देखें, एफबीआर भी उस तरफ से इंकरेज कर रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में रजिस्ट्रेशन है लोग ज्यादा करवाएं और ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, तो वहां पे टैक्स रेट भी कम है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसको थोड़ा सा सर अगर आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस पे दे दें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और आई थिंक के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज भी है। जी जी ज़रूर। देखिए सर, एससीसीपी हमेशा ही हम एससीसीपी की कोशिश रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, और जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हमेशा मिनिमाइज हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ वही उनसे इंफॉर्मेशन ली जाए, और ज़्यादातर जो हमारी प्रोसीजर्स हैं उसको हम ऑटोमेट कर दें, ताकि फिज़िकल जो प्रेजेंस है, फिज़िकल जो आते हैं हमारे पास एप्लीकेंट्स, वो भी ज़्यादातर फुटफॉल कम हो जाए। तो इसके लिए एससीसीपी ने कई कई स्टेप्स लिए। सबसे पहले एससीसीपी ने जो नंबर ऑफ फॉर्म्स सिंस 1984 जो चल रहे थे, जो कंपनीज ने फाइल करने थे हमारे पास, तो वो फॉर्म्स हमने देखे कि उसमें जो रिडंडेंट फॉर्म है या ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि जिसके बगैर भी काम हो सकता है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, तो हमने वो फॉर्म इस वक्त कोई मोर देन 80 फॉर्म्स थे, उसको मिनिमाइज करके सिर्फ 27 फॉर्म्स कर दिए। तो जो बाकी फॉर्म्स थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं। इस तरह राइट फ्रॉम, अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन को देखते हैं, जो बिजनेस का की एंट्री पॉइंट है, वहां पे पहले 4 या 5 फॉर्म्स थे। उन फॉर्म्स को हमने मिनिमाइज करके सिर्फ एक सिंगल फॉर्म कर दिया है, शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं। फिर जो बाकी इदारे हैं जहाँ पे बिजनेसेस की, एस्टेब्लिशमेंट्स की, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, हमने उनके साथ इंटीग्रेशन की, ताकि आपका अगर एनटीएन जरूरी है तो एनटीएन लेने के लिए आपको एफबीआर ना जाना पड़े। हम अपना डेटा पुश करते हैं टू द एफबीआर, और बाय डिफॉल्ट उसी डेटा की बेस पे आपको एनटीएन कंपनी को इशू हो जाता है, और सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे चला जाता है विदाउट एनी फी। तो इस किस्म के स्टेप्स हमने लिए। फिर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, हमने उसको डिजिटाइज किया ताकि वो हार्ड कॉपी ना हो, लोगों को आने की जरूरत ही ना हो। हम क्यूआर कोड के साथ, सिक्योरिटी फीचर्स के साथ वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेंट्स को। तो अभी भी हमने कोशिश कंपनीज एक्ट में यही कर रहे हैं कि जो ऐसी प्रोविजंस जो इंटरनेशनली जो रिडंडेंट हो गई हैं, उनको, ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है कि उनको हम रिमूव करें और एक अच्छा लॉ लेके आए जो कि प्रोग्रेसिव हो, और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है विद इन द कंट्री और आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री उसको इनकरेज करे। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के साथ चल के हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा भी, और आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी अपनी ज़रूर जो चेंजेस हैं वो ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर कोई प्रपोजल्स हैं वो हमसे ज़रूर शेयर करें तमाम मेंबर्स, ताकि इसको एक अच्छा लॉ लेके आए हम। जी थैंक यू सो मच जी बशर साहब, बहुत शुक्रिया। एक दो क्वेश्चन है सर चैट बॉक्स में, मैं वो पुट करता हूँ शहजाद साहब आप के लिए। एक तो सजेशन है, क्लॉज 218 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट फंड और सिक्योरिटी। इसमें सजेशन इन्होंने ये दी है कि जी माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे एक मेंबर है अल्लाह बख्श साहब, उनकी सजेशन है। शहजाद साहब इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? ठीक है जी। असल में ये जो है ना प्रोविजन, ये बेसिकली जो इसके थ्रेशोल्ड्स हैं वो नीचे रेगुलेशन के अंदर है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन है वहां पे ये है। और वो जो बैंक डिपॉजिट की प्रोविजन है उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि करंट भी शायद हम इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। बहरहाल इसको सब्सिडी लेजिस्लेशन में भी देखा जा सकता है और प्राइमरी लेजिस्लेशन में भी देख लेते हैं, अगर वर्डिंग में कोई कमी है तो उसको पूरा कर लेंगे। जी थैंक यू सो मच।
अगला क्वेश्चन है सर ए, कि वो एक टैक्स। इमरान साहब जी रिक्वेस्ट ये थी कि इन सबको ना आप कंपाइल कर लीजिएगा और हमारे से शेयर कर दीजिएगा। जी जी, ये बिल्कुल जितने बिल्कुल कर आपके पास देंगे। आ रहे हैं इसकी तो सर किसी को। स्लाइड की और ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सारी अवेलेबल है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, दिस शुक्रिया जी। होल वेबिनार इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड विल बी अवेलेबल, और हमारी फेसबुक पेज पे भी वैसे लाइव चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है सर कि हाफिज साहब है वो क्लैरिफिकेशन कुछ पूछना चाह रहे हैं कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट और डेडलॉक अमॉन्ग द डायरेक्टर्स होल्डिंग 75% ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स इन सच सर्कमस्टांसेस। इसकी लीगल पोजीशन वो कह रहे हैं क्या है कि अगर 75% में डिस्प्यूट हो गया और मीटिंग ही नहीं हो पा रही। तो सर ये एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना जी, एक जब छोटा फोरम इनकॉम्पिटेंट हो जाए कोई फैसला करने का, तो उससे बड़े फोरम चला जाया जाता है, फिर वो फैसला जनरल मीटिंग में होगा जी। ऑल राइट। दूसरा ये पूछना चाह रहे हैं कि जी ई प्रॉक्सी जो है ये पैरेलल चलेगी फिजिकल प्रॉक्सी के, या फिजिकल खत्म हो जाएगी। सर ई प्रॉक्सी हम मैंडेटरी करने लगे हैं। ये अभी अभी तक जो हमारी जो असल में कुछ हमारे यहाँ भी देखे काफी चेंजेस आई हैं। जब हम ये डिस्कशंस कर रहे थे और जब उस वक्त ये सारी बात थी, तो आइडियली यही बात है कि ई प्रॉक्सी की तरफ ही जाया जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। खास तौर पे लिस्टेड कंपनी में तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ही ई के तरफ जाएगा, जहाँ शेयर होल्डर बहुत दूर है फ्रॉम द मैनेजमेंट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कंपनी तो ई प्रॉक्सी भी ही अवेलेबल होगी, फिजिकल प्रॉक्सी विल बी एलिमिनेटेड। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि वो कह रहे हैं कुछ गाइडेंस मुझे चाहिए होगी चार्ज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 100। इसमें कोई सर अमेंडमेंट है या एग्जिस्टिंग ही है? थोड़ा सा इस पे अगर 1-2 मिनट आप बता दूं। सेक्शन 100 में कोई अमेंडमेंट है? अच्छा, ये देखिए हमने अभी कॉन्सेप्ट फ्लोट किया। ये इसका हमने हमने कोई प्रोविजन चेंज नहीं की। ये कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर डाला, जो कि दुनिया की मेजर रजिस्ट्री ने इसको यूनिफाइड रजिस्ट्री ही करार दिया है। जहाँ पे जो सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री है उसके अंदर कंपनीज और जो नहीं है कंपनीज, उन तमाम का डाटा वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और जाहिर है उसका मोड भी इस तरह का है कि बैंक खुद ही एसटीआर के अंदर बैंक खुद ही आके डाटा इनपुट दे देता है और कोई इक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती है, वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। आइडियल स्टेट हमारे लिए यही है फॉर फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉर्टगेजेस। तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक हमने कोई लीगल प्रोविजन शायद नहीं चेंज की, और प्रॉब्ली लीगल प्रोविजन चेंज भी ना करनी पड़े। हम सिर्फ इसकी टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को ही अलाइन करके एक रजिस्ट्री की तरफ जाने की बात करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी को इसलिए हमने ना कोई लीगल प्रोविजन को एड्रेस किया, ना एसटीआर की लीगल प्रोविजन, ना कंपनीज एक्ट की। लेकिन हमने एक आइडिया फ्लोट किया जिसके ऊपर हम कमेंट्स चाह रहे हैं सबके, कि उनका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए, और उस पर कोई फीडबैक है तो हम हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली राइट सर, इसमें थैंक यू। जस्ट मैं ऐड कर दूं कि जैसे शहजाद साहब सर। ने बताया, आजकल जो अच्छी मॉडर्न जुरिस्डिक्शंस हैं वहाँ पे एक ही यूनिफाइड रजिस्ट्री है फॉर मॉर्टगेजेस। तो हमारे पास सेक्शन 100 के नीचे, कंपनीज एक्ट के नीचे, कंपनीज के लिए तो रजिस्ट्री मौजूद थी जहाँ पे चार्ज रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन हो रही थी। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के लिए, जो कंपनीज नहीं है, उनके लिए कोई पाकिस्तान में कोई रजिस्ट्री नहीं थी। तो उसके लिए फिर ये सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट आया 2016 में, और ये रजिस्ट्री हमने बनाई। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि यूनिफाइड रजिस्ट्री के लिए, जैसे शहजाद साहब ने बताया कि दुनिया में यही हो रहा है जुरिस्डिक्शंस में, कि एक ही रजिस्ट्री होती है और वहीं पे सारा चार्ज रजिस्टर होता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि कंपनीज एक्ट से निकाल के इस प्रोविजन को और सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट का पार्ट बना दिया जाए। तो इस पे आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो मेंबर्स हजरात हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसका। जी। इसमें सर बिफा की तरफ से ना हमने एक प्रॉपर एक लेटर भी आपको लिखा हुआ है, वो शेयर भी अभी दोबारा भी करवा देते हैं। उसमें भी कुछ सजेशंस हैं, बाकी आज के वेबिनार के बाद मजीद कंपाइल करके ना इंशाल्लाह इन रिटन फॉर्म हम आपको जरूर इस पे भेज देंगे। अगला सर एक क्वेश्चन है कि जो एसईसीपी हैज इंट्रोड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट ओपनिंग कंप्लायंस एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये इफेक्टिव है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, फिर शहजाद साहब इसका रिप्लाई कीजिएगा कि अभी भी स्टिल बहुत समझाने के बावजूद भी कुछ बैंक्स जो हैं वो इनिशियली नई कंपनी का अकाउंट ओपन करते वक्त वो रिक्वायरमेंट्स मांग लेते हैं जो कि आफ्टर 16 मंथ आनी है।
ऑल्दो अब काफी बेहतर हो गई है, पिछले दिनों तो बहुत तंग किया, लेकिन ये इस रिक्वायरमेंट के हवाले से थोड़ा सा बता दें, और थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर दें उसको भी, कि नई कंपनी जब जाती है बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो उसको जो रिक्वायरमेंट्स बैंक एक दफा वो टिपिकल दे देते हैं चीजें उठा के, जो पुरानी कंपनियों की होती, उसका क्या सदेवा किया जाता है? अच्छा सर, इसके लिए हमने ना मेजरली अप्रोच किया पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के साथ, और हमने स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड किया। एक कॉन्सेप्ट पेपर हमने लिखा कि जिसके अंदर हमने कहा कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि जिस तरह अभी मुबश्शिर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि एफबीआर के साथ हमने एक ऐसा मुआहदा किया हुआ है कि जो ही कंपनी बनती है डाटा पुश हो जाता है एफबीआर को, तो तो वो एनटीएन इशू कर देते। तो हमारा आइडियल स्टेट ये था कि हम कंपनी बना के तो डाटा पुश कर दें, जो भी कंपनी का मालिक है वो जो बैंक हमें बताए उन बैंकों के साथ हम मोडालिटी तय करें और और वो बैंक के पास चला जाए सारा डाटा, और वो उसी वक्त अकाउंट ओपन कर दे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन इसके लिए जब हमने डेलिब्रेशंस की तो बैंक बैंक की रेडीनेस नहीं थी। और उस वक्त जब हमने ये कॉन्सेप्ट पेपर लॉन्च किया तो स्टेट बैंक डिजिटल कॉर्पोरेट अकाउंट ओपनिंग का कोई रजीम इन प्लेस नहीं था। ये आया है 2025 के अंदर। हाँ, और एससीसीपी की कोलैबोरेशन से हमने डिजिटली एनेबल कर दिया, यानी लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस आ गया 2025 में, कि अब बैंक इंडिविजुअल का तो बैंक ओपन कर देते हैं बैंक अकाउंट, वो आप मोबाइल ऐप से भी खोल सकते हैं, लैपटॉप से भी आप डिजिटली ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते थे जब तक के लिए लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। तो इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया, लेकिन अब बैंकों की रेडीनेस नहीं थी। तो एससीसीपी ने क्या किया कि एससीसीपी ने देखा कि डिजिटल बैंक्स रिलेटिवली ज्यादा तैयार थे, यानी कन्वेंशनल बैंक बिल्कुल तैयार नहीं थे, डिजिटल बैंक्स बिल्कुल तैयार थे। तो हमने 4 बैंकों के साथ एमओयू किया, और अभी हम 2 और बैंकों के साथ अनकरीब जा रहे हैं। उनमें एक डिजिटल है दोबारा, और एक कन्वेंशनल बैंक है, ये जिनके साथ हम एमओयू करने लगे हैं। अब इसमें अभी भी उनकी वो रेडीनेस नहीं है कि हम उनको डाटा पुश कर दें और वो अकाउंट खोल लें, लेकिन ये हो जाएगा कि आप बैंक के आप कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनेगी तो आपके पास आ जाएगा एक ईमेल पे हमारे जो एलिजिबल बैंक्स हैं जो कि हमारे साथ इंटीग्रेटेड है एपीआई के थ्रू, उनके उनका उनकी लिंक्स आपके पास आ जाएंगे उसी ईमेल में, जो इनकॉर्पोरेशन वाली ईमेल होती है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये। तो उसमें वो होगा, आप उसी वक्त जाके उसको क्लिक करें। फॉर इंस्टेंस आप इजी पैसा को क्लिक करते हैं तो इजी पैसा आपका ओपन हो जाता है, आप इजी पैसा के ऐप में चले जाएंगे, उनकी ऐप में अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे, और आप अपनी CUN जब डालेंगे तो सारा डाटा एससीपी का पुल हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और फिर इस तरह से पुल बेस्ड अप्रोच के तहत, पहले हम पुश बेस्ड अप्रोच पे जा रहे थे, अब पुल बेस्ड अप्रोच के तहत वो कंपनी का डाटा बैंक के पास चला जाएगा और बैंक वो अकाउंट जल्दी ओपन कर लेगा। तो ना आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ना आपको कुछ और चाहिए, ना बैंक ने एफआई पोर्टल खोलना है, फिर वो सिंपली उन सिस्टम के अंदर एम्बेड हो जाएगी सारी रिक्वायरमेंट। तो दिस इज द स्टेट गोइंग फॉरवर्ड। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, बैंक की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स, ये सब होपफुली 1 से 2 महीने में हम पहले बैंक राइट के सर। साथ, और बाय एंड ऑफ लाइक 6 मंथ इंशाल्लाह तमाम डिजिटल बैंक्स के साथ हम इस काबिल होंगे कि ये फौरन फैसिलिटी खुल जाए और लोगों के बैंक अकाउंट इमीडिएटली खुल जाए। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन है सर कि अनकोटेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज बीइंग कंट्रोल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स आर द सेम। My question is, why not to give relaxation of such unquoted public interest companies to hold only board meeting instead of additional burden of holding AGM under section 132? अच्छा, वो सर असल में तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ठीक है, हम सजेशन नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, राइट उसको सर। चेक कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रोल का मसला होता है, तो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट नीड टू बी एक्सरसाइज। वो खाली बोर्ड को इतनी पावर
देना थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन नेवरदलेस आई एम नॉट सेइंग यस और नो, बट आप सजेशन भेजें, हम कंसिडर करते हैं। एक सर और रिकमेंडेशन ही है। इन्होंने कहा है, सरफराज साहब है, इन्होंने कहा है कि जी आई वुड रिकमेंड टू ऐड न्यू डेफिनेशन ऑफ पब्लिक टू रिमूव कंफ्यूजन वेयर पब्लिक इज मेंशन इन कंपनीज एक्ट 2017 एक्सक्लूसिवली सेक्शन 84 prohibition on acceptance of deposits from public, which categorically restricts a company to take funds from public, but definition of public is missing in the said section. Auditors always seek clarification and legal opinion from company to clarify if funds obtained from business individual. ये उसमें मेरा ख्याल है वर्ड की एडिशन की इनकी है सजेशन सेक्शन ठीक है जी, 84 में। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो खत्म हो जाएगा तो जो कंपनी नेम चेंज जाएगा तो वो आप उसको किस तरह केटर करेंगे? फिर वो आर्टिकल में केटर होगा, किस तरह से होगा? आर्टिकल में जी केटर इरफान होगा। रशीद साहब का क्वेश्चन। एक इन्होंने फर्दर चीज पूछी है कि इन कोर्ट का जो रोल था वाइंडिंग अप और मर्जर में, ये प्रपोज टू बी एंडेड है जी, क्योंकि आपने वो कोर्ट उसको तो अ, निकाल दिया, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में से तो निकाल दिया आपने, वो बताया, तो ये जी मर्जर और वाइंडिंग आपको पूछना। नहीं जी, वाइंडिंग अप में अभी जहाँ पे एसेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे हमने उनका कोर्ट का रोल उसी तरह, लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का रोल उसी तरह रखा है जी। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये वैसे आपने पहले बता दिया था कि अगर 1 लाख कैपिटल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सेम है लास्ट 5 ईयर से, तो क्या वो कंप्लायंस जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग और एनुअल अकाउंट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? उसके आपने वैसे तो बता दिया कि वो कमीशन नोटिफाई करेगा कि कौन कौन लोग अब उसमें नहीं शामिल होंगे, उसके पैरामीटर्स भी आपने बताया होंगे। इसमें फर्दर कुछ बिल्कुल। आप कहना चाहेंगे? नहीं सर, क्लियर है बस मेरा यही है कि क्लियर? कमीशन नोटिफाई करेगा, पैरामीटर्स बताएगा कि कौन से नोटिफाई, कौन एग्जाम्पशन है किनके पास और किनके पास नहीं है। एनुअल रिटर्न की एग्जाम्पशन कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एग्जाम्पशन है वो अब आप देखें तो एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, एक अनऑडिटेड होंगे, तो दोनों जहां पे भी अपने अपने थ्रेशोल्ड पे आके बैठेंगे, उसके मुताबिक फिर उनके थ्रेशोल्ड के मुताबिक कंप्लायंस करना पड़ेगा। पुष्पक अनवर का क्वेश्चन है, वैसे इसमें आधा क्वेश्चन का एड्रेस है। इन्होंने पूछा ऑडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या एसीसीए और आईसीएमए भी हैं? तो आईसीएमए तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एसीसीए के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें तो। इस वक्त नहीं है जी। एसीसीए नहीं है। अगेन क्वेश्चन बैंक अकाउंट का, ये एड्रेस हो गया सर। अच्छा, एक इरफान साहब ने कहा है जी डिटेल डिस्कशन ईच जो चेंज है सेक्शन में, वो समरी सर आपको मिल जाएगी, ये स्लाइड भी शेयर हो जाएंगी, तो वो आप ले सकते हैं वेब ऑफिस से। खान साहब ने एक और क्वेश्चन किया है कि ये भी एड्रेस हो गया सर, फाइलिंग ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो कमीशन नोटिफाई करेगा, तो किस तरह होगा? कैन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी बी ट्रांसफर फिजिकली विदाउट ट्रांसफरिंग सीडीसी सर? अब नहीं हो सकता है जी ये काम। अब हाँ। एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उसके 30 दिन पूरे होने, वंस द 30 days आर ओवर, तो फिर आपके लिए पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप डीमैट कराएं अपने शेयर्स, और फिर जाएं और वहां पे ट्रांसफर कराएं, और फिर एससीपी के पास आके आप फॉर्म जमा कराएंगे विद जो सीडीसी के पास आपकी शेयर होल्डिंग पोजीशन है जी, उसके मुताबिक। जी। अदनान साहब ने क्वेश्चन किया है कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एसएमसी के लिए सर, वो तो एक्ट आप पढ़ें 2017 का, कानून में लिखा हुआ है जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बल्कि अब तो बड़ा इजी कर दिया है। एंड आई वुड अगेन थैंक मुबशर साहब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अगर आप इनकी पोर्टल पे जाते हैं और वो पोर्टल आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड करता है तमाम डॉक्यूमेंट का, और वहाँ पे बड़ी अच्छी चीजें अवेलेबल है। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपका प्रोसीजरल है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। For migration from physical to CDC, can we convert based on Form A, rather long process of submitting physical certificates? जी वो उनकी असल में लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने फिजिकल सर्टिफिकेट सरेंडर करने हैं, तो वो सीडीसी के साथ हमने मिनिमल रिक्वायरमेंट
जो कोई रिड्यूस हो सकती थी, वो एक लंबा प्रोसेस था। अब सिर्फ 3 से 4 टोटल रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन करेंगे सीडीसी के साथ, और मैं आपको दावत देता हूँ कि हम जरूर इसमें कोलैबोरेट भी कर लेंगे कि एक सेशन हमने सीडीसी के साथ रखना है, तो आप पिफा भी उसमें अपने मेंबर्स के साथ ज्वाइन करें, जो कि हम बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करेंगे इसके ऊपर, और ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करेंगे। बहरहाल ये अभी उतना कम्बरसम नहीं है जितना आपके लिए पहले था, यानी उसको उन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया है जी। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो ये जो फिजिकल शेयर वाला क्वेश्चन सर ने इसका आंसर कर दिया, ये दोबारा क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर किसी और का क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम इसको वाइडनिंग अप की तरफ लेके चलते हैं। सर इसमें एक आपने पॉइंट रेज किया था, मैं ऐड कर लूँ थोड़ा सा, उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने सेक्शन 18 आपने कहा जी हम अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं जो कि पेनल्टी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं मॉनिटरी टर्म में, क्रिमिनल साइड से निकाल के मॉनिटरी टर्म में कर रहे हैं। इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा, देखिए मॉनेटरी पेनल्टीज का ना दो तीन मामले ऐसे थे जहां पे हमने देखा कि प्रोविजन जो है वो इतनी सख्त नहीं है, वायलेशन इतना सख्त नहीं है, लेकिन पेनल्टी बहुत हार्श है, यानी क्रिमिनल पेनल्टी। तो और वो कभी भी एससीसीपी ने इस्तेमाल ही नहीं की प्रोविजन, यानी आज 70 साल हो गए, तो या जब सीएलए भी था, तो कोई किसी कंपनी के खिलाफ कोई क्रिमिनल पेनल्टी इम्पोज ही नहीं हुई इन सेक्शनों में। तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन की वायलेशन तो हो रही होगी, लेकिन कोई ये कर ही नहीं सका कि इसको, खास तौर पे आप देखिए 220 सेक्शन की मिसाल ले, जिसके अंदर के अकाउंट्स की मेंटेनेंस का मसला है या वो बना नहीं रहे हैं। तो अब इसमें अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, यानी फ्रॉड का आंसर नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि हम उसको फिर भी क्रिमिनल रखें? देखिए ना, मसाइल हो सकते हैं कंपनियों के। तो आप एक कमेंसरेट करते हैं, जो पेनल्टी होती है वो डिफॉल्ट से 3 तरह से, डिफॉल्ट से उसका रिश्ता जोड़ा जोड़ा जाता है कि वो प्रोपोर्शनेट हो टू द डिफॉल्ट, पेनल्टी शुड बी इम्पोज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉल्ट। दूसरा, इट शुड बी इफेक्टिव, कि दोबारा ये बंदा उस तरह ना करे और इस्लाह का जरिया बने पेनल्टी। और तीसरा, डिसोएसिव होनी चाहिए। डिसोएसिव का मतलब यह है कि दूसरे लोग इस पेनल्टी को देख के दोबारा ना वो डिफॉल्ट करें। ये 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं आप पेनल्टी डिफाइन करते हैं। जब हमने 3 क्राइटेरिया पे जांचा है इन चीजों को, तो हमें समझ आया कि ये तो वो डिफॉल्ट नहीं है जिनके लिए क्रिमिनल पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन ये सिर्फ उन जगहों पे हमने किया है, उनको हम कन्वर्ट कर दिया इनटू मॉनेटरी पेनल्टीज, और वो सिर्फ होगा। तो अब आप देखेंगे बहुत सारे एडजुडिकेशन एक्शन हो सकेंगे कंपनीज के खिलाफ, आप बेटर गवर्नेंस कर सकेंगे। कई पार्टनर्स इस वजह से एक दूसरे से, डायरेक्टर्स एक दूसरे से नाराज होते हैं या आपस में नहीं बात हो सकती। ऐसे ही स्पेशल ऑडिट इसीलिए लाएं कि वो स्पेशल ऑडिट कर लेंगे, वहां से डिफॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। डिफॉल्ट के बाद फिर हमारे हाथ पैर नहीं रुके होंगे कि ये तो अब कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से सजा करानी पड़ेगी, बल्कि एक एक पेंच हल्का सा आप उसको लगा सकेंगे, और वो आइंदा के लिए इस्लाह का जरिया बन सकेगा। थैंक यू सो मच सर, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे एड्रेस हो गए। बड़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुई है आज अमेंडमेंट के हवाले से। प्रपोजल्स भी इंशाल्लाह सबमिट करेंगे। मैं एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीओजी मेंबर अहमद सुलेमान जाहिद साहब से, FPFA FCA हैं, AC हैं, कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स भी कहें और कुछ अपनी एक दो उनकी जो बातें हैं वो भी इस फोरम के हवाले से करेंगे। अहमद साहब। शुक्रिया इमरान मोदी साहब। आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। जी शुक्रिया इमरान मोदी साहब फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर कंक्लूजन रिमार्क्स एंड वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SCCP में मैडम फौजिया परवीन का फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद पिफा मैनेजमेंट फॉर दिस वेबिनार, खुरम शहजाद साहब इन SCCP फैसलाबाद, मुबशर साहब एंड मिस्टर शहजाद अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया
आपके टाइम का आपने वक्त निकाला और हमारी पिफा मेंबर्स को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स को आपने एससीसीपी की इन चेंजेस के, प्रपोज चेंजेस के हवाले से हमें ब्रीफली बताया। और इसके साथ साथ मैं इमरान मुनीर साहब का, हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी नईम साहब का, और अली औसर पिफा की तरफ से आपका भी शुक्रिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। ऑन बिहाफ ऑफ पिफा मेरी कुछ गुजारिशात हैं एससीसीपी से। आज के इस वेबिनार की जो हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सजेशंस हैं, क्यूरीज हैं, वो इंशाल्लाह कंपाइल होके एससीसीपी से शेयर कर दी जाएंगी। रिकॉर्डिंग भी इस वेबिनार की शेयर कर दी जाएगी। मैं कुछ गुजारिश करना चाहूंगा एससीसीपी से, और डेफिनेटली रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की फेलो मेंबर बॉडी है, तीसरी फेलो मेंबर बॉडी है अलॉन्ग विद आईकैप एंड आईसीएम में। और हमारी ये सजेशन और एक लेटर पिफा की तरफ से आपको जा चुका है कल, कि पिफा के जो मेंबर्स हैं, पिफा को पहली बात तो ये कि पिफा को एज ए रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी कंसिडर किया जाए कंपनीज एक्ट में, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ताकि वो एलिजिबल हो सके पिफा के मेंबर्स सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की पोस्ट के लिए लिस्टेड कंपनीज में, अदर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में एलिजिबल हो सके। ये कुछ हमारी तरफ से तजावीज़ हैं, और बाकी आज की जो वेबिनार के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। प्रपोज चेंजेस इन कंपनीज एक्ट, इसमें जो अच्छे फीचर्स मुझे लगे, सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी वो ये है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान, जो कि एससीसीपी ने और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जॉइंट इनिशिएटिव लिया है। इट्स वेरी फेवरेबल फॉर लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एंड फैमिली बिजनेसेस एज वेल। बहुत सारे हमारे फैमिली बिजनेसेस हैं जो कि इंडिया एज इंडिविजुअल, एज ए पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से नहीं आते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट नहीं करते। होपफुली इन अमेंडमेंट्स के बाद बहुत सारी फैमिली बिजनेसेस जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ से तरफ आएंगे, ताकि वो अपने बेनिफिट्स को, शेयर होल्डिंग को सिक्योर कर सकें, सक्सेशन आसान हो सके, और जो विरासत के मामला हैं वो आसान हो सके। और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छे फीचर्स हैं इन अमेंडमेंट्स में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से बहुत अच्छी इसमें तजावीज़ हैं, चेंजेस हैं। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप सब लोग पता है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिट तो कमाते हैं, ग्रो भी करते हैं, सेल्स भी उनकी बहुत बढ़ती हैं, लेकिन उनका सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता बिकॉज ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर मैटर्स। उसको हम सिक्योर कर लेंगे तो हमारे बिजनेसेस सस्टेनेबल हो सकेंगे। Promotion of digitalization and use of technology is very encouraging. Business promotion and alignment with global practices is also very encouraging. Concept of book entry with CDC, elimination of memorandum of articles, discriminalization concept is very encouraging. Exemption of AGM and EOGM in private companies is definitely also very encouraging. And collaboration with banks, Pakistan Banks Association, State Bank of Pakistan for integration ऑफ बैंक्स विद एससीसीपी, ताकि उनका टाइम सेव हो सके, हमारा जल्द अज जल्द बैंक अकाउंट ओपन हो सके। ये बहुत अच्छी सजेशंस हैं, और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं एससीसीपी इन चेंजेस के बाद और चेंजेस भी लेके आएंगे, ताकि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो सके हमारे इस मुल्क में। इसके साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका। ओवर टू यू इमरान मुनीर साहब। थैंक यू सो मच आंसर, बहुत शुक्रिया। आपने फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स तो कर दिया, एंड विद दिस इंशाल्लाह ताला वी विल सी विद अनदर इनिशिएटिव टेकन बाय पिफा। जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, हमारी एक्टिविटीज प्लान्ड होती हैं जी काफ़ी सारी। ये जो आप आज देख रहे हैं काविश, इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी हमारी टीम की, और ये आज के दिन प्लान किया गया। एंड वी थैंक यू आवर एससीसीपी फेलो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जिन्होंने आज हमें इज्जत बख्शी हमारे पास आके, और हमारे लोगों को बहुत डिटेल से अमेंडमेंट के हवाले से गाइड किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।